So today we will discuss a very famous essay of Niraj C. Chaudhary, My Birthplace. In his essay, he beautifully described the town where he was born, his early childhood memory, the people around him, and the cultural and emotional connection he shared with his birthplace. My Birthplace is an autobiographical essay written by Niraj C. Chaudhary, renowned Indian writer and scholar, but best known for his book The Autobiography of an Unknown Indian. This essay is a deeply nostalgic and reflective piece that describes the author's memories of his birthplace, Kishorganj, a small town in East India, now in Bangladesh. सो बेसिकली इस ऐसे के अंदर जो हमारे एसेइस्ट निराज सिंह चौधरी है वो डिस्क्राइब करते हैं अपने बर्थ प्लेस को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और वो फेमस है उनकी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन है उसकी वजह से ये जो ऐसे है फुली बेस्ड है उनके जो नॉस्टैल्जिक और रिफ्लेक्टिव जो उन्होंने मेमोरीज थी अपने बर्थ प्लेस की किशोरगंज की वहाँ की मेमोरीज को इस ऐसे के थ्रू हमें बताया गया है ये ऐसे बताता है कि जिस किशोरगंज एक स्मॉल टाउन था उस समय ईस्ट बंगाल का और नाम अभी बांग्लादेश का एक पार्ट बन चुका है चौधरी वॉज बोर्न इन 1897 and in this essay he paints a vivid picture of the environment, people, culture and values of his early life. The tone is affectionate, rich in detail and filled with emotions as he recounts the influence of his surroundings on his development as a person and intellectual. इसमें वो बताते हैं कि चौधरी जो है इस ऐसे के अंदर बता रहे किस तरीके से जो उसका गांव किशोरगंज था कल्चरल वैल्यूज से भरा था पीपल जो उसके आसपास के थे अफेक्शनेट थे सभी इमोशन से भरे हुए थे और बताता है किस तरीके से उसकी सराउंडिंग्स ने उसके डेवलपिंग में भी हेल्प की है समरी ऑफ द एसे First, a vivid description of the place. Chaudhary presents a detailed and picturesque description of his birthplace. He described the town's physical layout, its narrow lanes, ponds, house, and surroundings. Natural beauty. He use of sensory details, sight, smell, sound, bring the town to the life and help the reader visualize the rural charm and peacefulness of किशोरगंज सबसे पहले वो डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पर वो रहते हैं किस तरीके का वो गांव है फिजिकल लायोट कैसा है गांव का वहाँ पर तालाब है घर है उसका जो सराउंडिंग है आसपास का जो वातावरण है एकदम नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि रीडर वहाँ के विजुअल को इमेजिन कर सकता है, स्मेल कर सकता है, साउंड भी उसको सुनाई दे ऐसा उन्होंने लिखा है। और ये सारी और वो बताते हैं कि उस समय किशोरगंज बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस हुआ करता था। Emotional attachment. They also reflect Chaudhary's deep emotion connection with his birthplace. Despite moving to urban center later in his life, he cherished the memory of his childhood and expressed a sense of pride and affection. His attachment is not just the place but the values, tradition and experience he gained there. आगे वो बताते हैं कि चौधरी अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग जगहों पर घूमे हैं, अर्बन सेंटर्स में गए हैं, लेकिन जो चाइल्डहुड की मेमोरी है, उसको हमेशा चेरिश करते हैं। वो सेंस ऑफ प्राइड फ़ील करते हैं, अफेक्शन फ़ील करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उनको उनकी जो चाइल्डहुड की मेमोरी है, बर्थ प्लेस की मेमोरी, किशोरगंज की जो मेमोरी है, वो हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो उनका एक अटैचमेंट है उस प्लेस से। उनको जो भी लाइफ में जो भी वैल्यूज़, ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस उन्हें मिले हैं, सभी वो किशोरगंज से ही मिले हैं। आगे वो डिस्क्राइब करते हैं कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। चौधरी डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ द टाउन, including the custom, religious practice, festival, and the daily life of the people. He also discussed the influence of Bengali Hindu culture and coexistence of different community. वो बताते हैं किस तरीके से डिफरेंट कम्युनिटी के लोग बहुत ही आराम से वहाँ पर रहा करते थे बिना किसी लड़ाई झगड़े के सभी कम्युनिटी साथ में रहा करती थी फैमिली अपब्रिंगिंग
The essay gives glimpse of the author's family background. His father was a lawyer and a man of principle, which had a lasting influence on Chaudhary's character. The disciplined household emphasis on education and explore to classical literature and music shaped his intellectual journey for a very young age. आगे वो बताते हैं कि जो उनकी फैमिली थी, उनके पापा एक लॉयर थे और मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। अपने बात के वो पक्के थे और उनका ही जो प्रभाव है चौधरी के कैरेक्टर पे भी पड़ा है। जिस तरीके से उनके घर में डिसिप्लिन हुआ करता था, एजुकेशंस और क्लासिकल लिटरेचर और म्यूज़िक के लिए उनको जो बढ़ावा मिला है, वो भी उनकी अर्ली चाइल्डहुड के माध्यम से ही उन्हें मिला है। एट द एंड वो बताते हैं सेंस ऑफ लॉस के बारे में। एज ए रिविजिट हिज मेमोरी देयर अंडरलाइन फीलिंग ऑफ लॉस बोथ पर्सनल एंड कल्चरल। The essay subtle hints at the changes time has brought to Kishoreganj and fading of an era, making it not just a person recollection but also a lament for a lost word. वो बताते हैं किस तरीके से अब जो उनका ईस्ट बंगाल है, बांग्लादेश में बदल चुका है, तो वो भारत का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए वो उनके बर्थ प्लेस को लूज़ कर चुके हैं। खाली उनके पास अब सिर्फ़ अपने बर्थ प्लेस की मेमोरीज़ है। जो उनका जो पर्सनल और कल्चरल चीज़ें थी वो सब फेड अप हो चुकी है, सिर्फ़ फीलिंग बची है उनके अंदर, जो मेमोरीज़ है वही रही है, बाकी जो किशोरगंज है वो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो भारत का पार्ट ना होकर बांग्लादेश का पार्ट हो चुका है, जहाँ पर अब शायद जो हमारा ऑथर है वापस जा भी नहीं सकता, अपने जो पुराने जो लम्हे हैं उनको जीने के लिए वहाँ नहीं जा सकता। तो एट द एंड ये बताते हैं कि सेंस ऑफ लॉस किस तरीके से उनका हुआ है, सिर्फ़ अब मेमोरी बाकी है उनके पास और जो बर्थ प्लेस है जहाँ वो रहते थे, वो अब ख़त्म हो चुका है। Conclusion. My birthplace is more than just a memory. It's a thoughtful meditation of childhood memory and identity. Through his rich description and heartfelt reflection, Niraj C. Chaudhary invite readers to value their roots and understand how early environment shape one's worldview. इसके अंदर वो बताते हैं जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरी किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो हमारी रूट्स होती हैं उनको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वही हमारे आगे की लाइफ को शेप करती है।